وہ بھاگ کر اوپر پہنچی تو کانپ اٹھی۔ مایا کے کمرے کے سامنے بڑے ہال میں میرب بے ہوش پڑی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے تھوڑا آگے بڑھی۔ آگے کا منظر بے انتہا بھیانک تھا۔ اس کی روح کانپ گئی اور رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پورا جسم جیسے زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ صرف ایک نظر ہی دیکھ پائی اور بے یقینی اور دہشت کے مارے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں زور سے بھینچی تھی۔ اندر خون کی ندی بہہ رہی تھی۔ بیوٹیشن کمرے کے ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی، جبکہ دلہن کی تیزاب سے مسخ شدہ لاش صوفے پر پڑی تھی۔ کسی تیز دھار آلے سے گلا کاٹا گیا تھا۔ اتنے میں بھگدڑ مچی تھی۔ ریان، سارا، سمیرا اور میرب کے پاپا حال میں پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے شفان، ایس پی حارث اور کئی پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک پولیس آفیسر نے باقی کسی کو بھی اندر آنے سے روکا ہوا تھا۔ شفان نے کلا اتار کر پھینکا تھا اور پاگلوں کی طرح سیڑھیاں پھرانکتے ہوئے اوپر آیا کہ تبھی ریان، سمر اور مایا کے پاپا نے اسے اندر جانے سے روکتے ہوئے سختی سے دبوچ لیا تھا۔ کتنا کم وقت لگا تھا خوشیوں کے لمحوں کو ماتم میں بدلتے ہوئے۔ شفان فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سب بے تحاشا رو رہے تھے۔ یہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مایا کی ماما غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ میرب بھی ہوش میں آ کر چلائی جا رہی تھی۔ مایا کا بھائی سیف بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ سب سے پہلے یہ ہولناک منظر اسی نے ہی دیکھا تھا۔ اسی نے پولیس کو انفارم کیا تھا۔ پولیس اندر اپنی انویسٹیگیشن میں مصروف تھی۔ وانیہ دیوار سے لگی بے تحاشا رو رہی تھی۔ ساتھ سمیرا بھی کھڑی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح روتے ہوئے شفان کو دیکھ رہی تھی کہ کتنا دردناک تھا اپنے عشق کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھنا، کہ اچانک شفان نے خاموش ہو کر وانیہ کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دندناتا ہوا وانیہ کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر سہمی تھی۔ تم تم کیوں اتنا سجری سنوری ہوئی ہو؟ کس بات کی اتنی خوشی ہے؟ سب حق تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وانیہ نے ادھر ادھر دیکھ کر بے حد بے بسی اور بےچارگی کے ساتھ کہا، یہاں سب ہی تیار تھے، اکیلی میں۔ شٹ اپ! وہ دھاڑا۔ وانیہ سہم گئی اور بلک بلک ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ لو دیکھ لو، ہو گیا۔ اب یہ جھوٹے آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ جاؤ جا کے جشن مناؤ۔ تمہارے تو دل کی مراد پوری ہوئی ہے۔ راہ کا کانٹا جو صاف ہو گیا۔ چٹاخ! ریان نے زور کا تمانچہ مار کر شفان کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ سب ہکا بکا رہ گئے تھے اس کے اس عمل سے۔ پاپا، یہ یہی چاہتی تھی۔ وہ پھر بے قابو ہوا۔ سمر اور حارث نے اسے زور کے پکڑا ہوا تھا۔ شفان، تم ہوش میں نہیں ہو، بکواس بند کرو اور بند کرو یہ تماشا۔ ریان بھی دھاڑے تھے۔ پاپا، اس کو کہیں یہاں سے چلی جائے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، دور چلی جاؤ۔ تمہاری بد دعاؤں نے برباد کر دیا مجھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وانیہ نے ایک بے بس نگاہ سمیرا پر ڈالی اور وہاں سے بھاگی۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ نیچے اتری اور باہر آ گئی۔ دو اجنبی نگاہوں نے اس کا آخر تک اور بڑی گہرائی سے تعاقب کیا تھا۔ کتنی بد نصیب تھی مایا، وہ زندگی کے اس موڑ پر تھی جہاں 99 پر آ کر زندگی ہار گئی تھی اور ایک سانپ نے اسے کٹ کر دیا تھا۔ اس کی آخری خواہش پوری ہوئی تھی، اپنے پاپا کے گھر سے رخصت ہونے کی۔ اور اگر قیامت آنی تھی تو جو مایا کے ساتھ ہوا وہ پھر کیا تھا؟ وہ باہر لان میں آئی تو سامنے تانی کھڑی رو رہی تھی، لیکن وانیہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر چونکی۔ وانی، کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور مایا کو کیا ہوا؟ تانی پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی رو رو کر۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ تانی بے حد پریشان ہوتی اسے سنبھالتی ہوئی گھر لے آئی۔ مایا کا سوئم ہو چکا تھا۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، یہ سب کس نے کیا تھا؟ کیس ایس پی حارث کے پاس تھا۔ اس نے اپنی پوری جان لگا دی تھی قاتل کو ڈھونڈنے میں، اور اس کا پورا ساتھ دیا تھا شفان نے، لیکن اب تک ایک بھی سراغ ہاتھ نہیں لگ پایا تھا۔ قاتل بہت شاطر تھا، اپنے پیچھے ایک سراغ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بیوٹیشن کا کہنا تھا کہ اسے کچھ نہیں معلوم۔ وہ واش روم میں گئی، باہر آئی تو کسی نے چہرے پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ صرف اتنا دیکھ پائی تھی کہ مایا کو مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ اب بھی شفان پولیس اسٹیشن میں حارث کے آفس میں بیٹھا تھا۔ حارث، مجھے ہر صورت اور ہر قیمت پر قاتل تختہ دار پر لٹکا ہوا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں یار، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ یہ دیکھو فون کال ریکارڈ، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تمہارے خاندان کے اندر باہر کوئی دشمنی نہیں، نہ فنگر پرنٹس، کچھ بھی نہیں، حارث نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، لیکن ایک بات کنفرم ہو چکی ہے کہ قاتل کوئی انتہائی قریبی ہے۔ شفان بے طرح چونکا تھا۔ اسے گھر کے تمام معاملات کی خبر تھی، ہر راستہ، حتیٰ کہ مایا کے روم کا بیک سائڈ ڈور بھی۔ اور جس طرح کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، نہ کوئی آواز، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور۔ کیا؟ جس طرح کوئی قیمتی چیز نہیں گئی اور وکٹم کو اتنا ٹارچر کیا گیا،
तो मामला इंतहाई नफरत या फिर किसी बदले का है। शिफान गहरी सोच में था कि हारिस ने पूछा, शिफान एक बात तो बताओ, तुमने वानिया को क्यों डांटा था? क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है? शिफान ने हड़बड़ाकर नजर चुराई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा दिमाग माउफ हो गया था इस वक्त। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों। वो बड़ी ही सफाई से अपना दामन बचा गया। ये सुनकर हारिस ने सुकून का सांस लिया। शिफान, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की तवक्का नहीं थी। हारिस ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। तुम जानते हो तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो तो मैं हूँ जो फैमिली के हर शख्स को जानता हूँ। कोई और होता तो इस केस से, जिसका ऊपर से इतना दबाव है हम पर, केस से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारी इस बकवास की बना पर इस मासूम लड़की को काल कोठरी में डाल देता और केस बड़ी आसानी से क्लोज कर देता। हारिस ने इसे इसकी संगीन गलती का एहसास दिलाया। वो तो पहले ही इस दिन से कांटों पर लौट रहा था, अब भी पछतावे के दर्द से पहलू बदल कर रह गया। एक तो जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो बैठा था, ऊपर से कितना दिल दुखाया था इसने सबका, खास तौर पे इस नाजुक कोमल सी लड़की का, जो कि इसकी वजह से पहले ही इतने दुख और दर्द बर्दाश्त कर रही थी। वो जानता था सब शुरू दिन से इसके खालिस मुंह बोलते और पकीजा जज्बों से आगाह होने के बावजूद वो मुकम्मल अनजान बना हुआ था। जानता था कि रेयान पापा को इल्म हुआ तो वो यकीनन माया पर वानिया को तरजीह देते, इसलिए वो अपने लिए खुद गर्जी से सोचते हुए अनजान बन गया। लेकिन अब जो इसने वानिया के साथ किया था वो किसी पल इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दिल में पछतावे मचल रहे थे, बेहद बेचैन, किसी पल करार न था इसे। इस मासूम का दिल दुखाकर पर माफी की थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर इससे कहाँ और कौन सी भूल हुई थी। कब इसने अपने कीमती और नाजुक जज्बों को किसी पर जाहिर होने दिया था, जो यूं सबके सामने इसकी नस्वानियत और खुददारी की धज्जियां उड़ाई गई थीं। कितनी ठेस पहुंची थी इसके फनदार को, कितना रोई थी वो माया के घर से आकर। पूरा महीना हो गया था, वानिया और तानिया तो घर से ही ना निकली थी। अम्मी ने ही इनको बताया था कि शिफान ने सबसे माफी मांगी थी अपने रवैये पर। इसका पूरी तरह दिल टूट चुका था और जो फैसला पिछले दिनों करते हुए इसकी जान लबों पर आ जाती थी, वो फैसला वो इन चंद दिनों में बड़ी आसानी से कर गई थी। माया के चहलम के बाद इसने अम्मी जी को बताया कि इसे हारिस के साथ रिश्ते से कोई एतराज नहीं, इसे ये रिश्ता मंजूर है। अम्मी जी बहुत खुश हुई थी और इन्होंने रेयान से भी बात की। कई दिनों के बाद इस शोर और घुटन के माहौल में कोई खुशी की खबर सुनने को मिली थी। वो सब भी बहुत खुश हुए थे। वो कारी ज़रब जो इसकी खुददारी और इज्जत नफ्स पर पड़ी थी, इसे पत्थर से भी ज्यादा सख्त बना गई। रेयान घर से सो का सब माहौल खत्म करना चाहते थे, इसलिए वो सब सिफाई शिफान के समीरा की तरफ चले आए। वो सब लॉन में बैठे थे, शाम का वक्त था। मीरब भी अच्छी खासी बहल गई थी। सबने चाय पी। रेयान समीरा से रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के बारे में पूछ रहे थे। समीरा ने इस बात में जवाब दे दिया, ठीक है समीरा, मैं जमाल को हाँ कहने के लिए फोन कर देता हूँ। मुझे तो इस घुप अंधेरे में उम्मीद की यही किरण नजर आई, और मीरब की भी यही ख्वाहिश है, शायद इसी से ही सबका ध्यान बढ़ जाए। जी भाई, बस वक्त सबसे बड़ा मरहम है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वानिया और तानी लॉन में बैठी थी। वानिया कॉलेज में होने वाले फंक्शन की तैयारी कर रही थी। वानिया ने एक जबरदस्त स्पीच देनी थी, जबकि तानी अपनी स्टडी में बिजी थी। इसके एग्जाम अभी होने थे। वानिया स्पीच के लिए बेहतरीन मवाद इकट्ठा कर रही थी, दोनों अपने अपने काम में मगन थी। मखसूस गाड़ी का हारन सुनाई दिया। वानिया के चेहरे पे साया सा लहराया और हवाइयां उड़ी थी। तानी भी चौंकी। वानिया फौरन उठी, अंदर भागते हुए बोली, तानी, मैं इस शख्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, हरगिज नहीं। वो भराई आवाज में वो मुश्किल बोली, मैं अंदर जा रही हूँ, मेरा पूछा तो कहना घर पे नहीं हूँ। वो जल्दी जल्दी बोलकर अंदर भाग गई और लाउंज के दरवाजे के पीछे छुप गई। शिफान धीमे धीमे चलता हुआ तानी के करीब आया था। चेहरे पे रहने वाली दिल फरेब सी मुस्कान कहीं खो गई थी। वो बरसों का थका हुआ कोई मुसाफिर लग रहा था। तानिया और अंदर वानिया ने बेहद सदमे से इसका बिखरा हुआ हुलिया मुलाहिजा किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? जी ठीक हूँ भाई। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस एग्जाम की तैयारी। निम्रा बता रही थी कल से जाना है कॉलेज। वानी से कहना रेडी रहे, मैं पिक करने आऊंगा। अंदर वानिया तड़प कर तिल मिलाई थी। कहाँ है वानिया? वो भाई, वो घर पर नहीं है। तानिया की झूठ बोलते हुए जुबान लड़खड़ाई। शिफान ने एक नजर टेबल पर डाली, जो दो कुर्सियों के आगे टेबल पर बिखरे हुए पेपर, दो जूस के गिलास और लाउंज के दरवाजे में उड़ता दुपट्टा। माया के जाने के बाद वो पहली बार दिल से मुस्कुराया था। वो बड़ी दिलचस्प से लाउंज के दरवाजे में उड़ता दुपट्टा देख रहा था। तानी ने शिफान की नजरों के ताकुब में वही सब चीजें देखी तो दिल किया अपना सर पीट ले। इसने शर्मिंदगी के मारे सर झुका लिया। ओके वानी, आए तो इससे कहना कि मैं माफी मांगने आया था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ।
اسے کہنا پلیز مجھے معاف کر کے میری تھوڑی اذیت کم کر دے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کرب اور اذیت کا ایک جہان آباد تھا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں چلا گیا۔ وانیا اندر زمین پر ڈھہ سی گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیوں ہر بار اس کی برداشت آزمانے آ جایا کرتا تھا؟ وہ اس کی اذیت پر تڑپی تھی، اس لیے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ صبح جلدی اٹھی، فجر ادا کی اور سب کے سکون کی دعا مانگی۔ کالج کے لیے ریڈی ہوئی۔ وہ شفان کے آنے سے پہلے ہی اپنی گاڑی میں نکل جانا چاہتی تھی۔ مصروف سے انداز میں بیگ میں اپنے پیپر چیک کرتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی تو کسی کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ خود کو سنبھال کر گھبرا کر سامنے دیکھا تو گڑبڑا گئی۔ سامنے شفان تھا۔ کہاں کی جلدی ہے؟ ابھی ابھی جو ٹکراؤ ہوا تھا، وانیا کی بولتی بند ہو گئی اور نظر جھک گئی۔ وہ میں جلدی جانا چاہتی تھی، اس لیے۔ چلو پھر، نمرا بھی ریڈی ہے۔ نہیں، اس کے انکار پر شفان نے چونک کر اس کا پھولا ہوا خفاش سا معصوم چہرہ دیکھا۔ میرا مطلب ہے میں خود چلی جاؤں گی۔ کیا پاگل پن ہے وانیا؟ حسب معمول وہ غصے میں گرایا، اور اسی غصے ہی سے تو وانیا کی جان جاتی تھی۔ مجھے پاپا نے بھیجا ہے کیونکہ ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ قاتل کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے کیا پتا؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کا لہجہ انتہائی شکست خوردہ تھا۔ سمیرا سب سن رہی تھی۔ آ کر وانیا کو ڈپٹا۔ کیا بچپنا ہے وانیا، کیوں بحث کر رہی ہو؟ پھپھو شاید یہ اس دن سے ہی ناراض ہے مجھ سے۔ مانتا ہوں غلطی ناقابل تلافی ہے میری۔ میں صدمے میں کیا کیا بکواس کر گیا نہیں جانتا، پر میں سب سے معافی مانگ چکا ہوں۔ اس سے بھی مانگنے آیا تھا، تانی نے بتایا ہوگا، اور اب پھر آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز ریئلی ویری سوری، وہ شکست خوردہ سا بولتا گیا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، تبھی وانیا بول دی، میں جاتی ہوں امی، آپ فکر مت کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شفا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، بڑی گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اور پاپا نے آگے بات کی تو ادھر سے بھی ہاں ہو گئی تھی۔ یعنی دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ باقاعدہ رسم ہونے کے لیے کچھ وقت گزرنے کا انتظار تھا۔ شفان کو پتا تھا کہ وہ صرف اس سے بھاگ رہی ہے، اور یہ بات بھی جانے کیوں اسے بے حد اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا، وانیا اور نمرا کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی۔ تانی ریان ماموں کے ساتھ آتی جاتی تھی کیونکہ اس کا کالج ان کے روٹ میں تھا۔ اسٹڈی دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وانیا مکمل طور پر اسے اگنور کر رہی تھی، چہرہ بھی بالکل سپاٹ ہوتا، کسی بھی جذبے کے بغیر، اور یہ سپاٹ چہرہ نہ جانے کیوں شفان کے دل میں ایک کسک جگا دیا کرتا۔ آج بھی وہ اسٹڈی سے فارغ ہو کر باہر گیٹ پر شفان کا ویٹ کر رہی تھی۔ آج کسی وجہ سے نمی بھی نہیں آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر ٹائم دیکھا۔ اتنے میں ایک گاڑی اس کے قریب رکی تھی۔ وہ سیف تھا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ السلام علیکم سیف بھائی، آپ یہاں کیسے؟ بس سوچا بہن کی یاد تازہ کروں۔ وہ بے حد افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ تم ابھی تک کیوں کھڑی ہو؟ اگر کوئی نہیں آیا تو آؤ میں ڈراپ کروں تمہیں۔ نو تھینکس، بس ابھی شفان آتے ہوں گے۔ ابھی وہ بولی ہی تھی کہ شفان کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ بھی سیف کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ ہاں، تم دونوں کزنز کی کیمسٹری تو بہت زبردست ہے۔ ابھی وانیا صاحبہ نے بھی یہی بات پوچھی تھی مجھ سے۔ پتہ نہیں سیف تعریف کر رہا تھا کہ طنز؟ شفان دھیرے سے مسکرایا تھا، جبکہ وانیا کلس کر رہ گئی۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے میں قریب ہی ضروری کام سے آیا تھا۔ وانیا کو کھڑے دیکھا تو بات کر لی۔ کوئی پرابلم ہے؟ جانے کیوں اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ارے نہیں، بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ اوکے چلتے ہیں، آگے ہی کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ چلو وانی۔ اس نے بھاگ کر وانیا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ وانیا حیران تھی، پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا حارث؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ خیریت ہے؟ شفان نے حارث کے آفس میں داخل ہوتے ہی کئی سوال کر ڈالے۔ نہیں خیریت نہیں، ایک بہت بڑے راز کا انکشاف ہوا ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ شفان بے چین ہوا۔ سیف یاور انکل کا بیٹا اور مایا کا سگا بھائی نہیں ہے کیا؟ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہاں، میں نے ساری انفارمیشن نکلوائی ہے۔ وہ یاور انکل نے اسے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اڈاپٹ کیا تھا کئی سال پہلے۔ سیف کا باپ جرائم پیشہ افراد سے منسلک ہوا، بیوی کو کسی دشمن نے قتل کر دیا، تو بیٹے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے کسی ادارے میں چھوڑ دیا۔ تو پھر شفان اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ تو پھر یہ کہ سیف بہت پہلے سے جانتا تھا کہ وہ یاور کی سگی اولاد نہیں، اور بہت پہلے سے وہ اپنے سگے باپ سے مسلسل ٹچ میں تھا۔ اس سے ملتا ہے، جو کہ اب شہر کا با اثر ترین شخص ہے، دولت سے کھیل رہا ہے۔ تو پھر اس سے مایا کے مرڈر سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے؟ حارث خاموش ہوا۔ کیا تعلق ہے بتاؤ حارث پلیز۔ وہ مایا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ واٹ؟ شفان دم بخود رہ گیا۔ ہاں، انویسٹیگیشن کے دوران مایا کی ایک فرینڈ سے پتا چلا کہ اس نے جب مایا کو پرپوز کیا تو مایا نے اس کی بہت انسلٹ کی اور اسے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا بھائی تھا اور رہے گا۔ وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سیف نے بتایا بھی کہ میں تمہارا سگا بھائی نہیں ہوں، لیکن مایا نے کہا کہ وہ اسے بچپن سے بھائی مانتی آئی ہے، اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
शिफान को अपनी समातों पे यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी से सब सुन रहा था। तो क्या इसकी माया को सैफ ने छीना था? इससे इसकी रगें तन गईं और गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। और इसी ने ही सबसे पहले आकर बताया था हादसे के बारे में। वो माया के रूम में क्या कर रहा था? अब शिफान का दिमाग भी चलना शुरू हुआ। तो फिर हारिस, तुम बड़े आराम से मुझे बता रहे हो तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया इस जंगली दरिंदे को? कोई फायदा नहीं शिफान, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो आराम से बच निकलेगा और इसका क्रिमिनल बाप इसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हारे खानदान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पहली बात तो मुझे पक्के सबूत ढूंढने दो ताकि ये केस ज्यादा तूल ना पकड़े। दूसरा, तुम लोगों की सिक्योरिटी से जब तक मैं मुतमईन ना हो जाऊं कोई स्टेप नहीं उठाना चाहता। ओ खुदाया, वो दरिंदा खुलेआम घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। शिट। शिफान ने टेबल पर मुक्का मारकर अपना गुस्सा निकाला। नफरत और गुस्सा एक तूफान सा उठा उसके दिल में। और हाँ, एक और चमका देने वाली और परेशान कर देने वाली बात है। हारिस हकीकतन परेशान था। शिफान भी बेहद मुतफक्किर होकर पहलू बदला। वो क्या यार, बताओ मुझे खुलकर। बुजदिल मत समझो मुझे। वक्त आने पर मैं अपनी और खुद से जुड़े रिश्तों के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। इसकी आंखों में जुनून था। मैंने अपने दो आदमियों को सैफ पर नजर रखने को कहा तो पता चला कि वो मुसलसल तुम पर, तुम्हारी हर सरगर्मी पर, और पल भर को हारिस खामोश हुआ। और क्या? और वानिया पर नजर रखे हुए है। वो मुसलसल वानिया का ताकुब कर रहा है। शिफान को अपना दिल बैठता हुआ सा लगा। वानिया पर? लेकिन क्यों? ये तो तुम मुझे बताओ कि क्यों? हारिस ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। वो माया से इश्क करता था, इसके बावजूद इसने माया का वो हशर किया। तो सोचो वो तुमसे कितनी नफरत करता होगा। वो तुम्हें और तुमसे मुंसलिक हर शख्स को बर्बाद करना चाहता है। और जहां तक मुझे अंदाजा है वो तुम्हारी इस दिन की बातों से उसे ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे और वानिया के बीच कुछ। इसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। शिफान को तो ऐसी चुप लगी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। लेकिन वानिया क्यों? फिर इसे सब समझ में आया। तमाम बातें किसी वीडियो की तरह इसके दिमाग में घूम गईं। शिफान को किसी पल करार न था। सोच सोच कर दिमाग सुन्न हो चुका था। अपने कमरे में बेचैनी से यहाँ वहां टहल रहा था। माया के जाने के बाद 3 दिन बाद जो ताजा गुलाबों की मिसहरी बनाई गई थी वो भी अपनी हसरतों पर मातम करती उतार दी गई थी। लेकिन छत पर बेइंतहा खूबसूरत मसनूई फूलों की सजावट हनूज बरकरार थी। कैसे इसके सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों को कुचल दिया गया था। इसके अरमानों को मसल दिया गया था। मुसहरी वाले कमरे में अब जा बजा हसरतें बिखड़ी पड़ी थीं। कितना मुश्किल से समेटा था इसने खुद को। अपने खून हुए अरमानों और जज्बों का गला घोंटा था इसने। लेकिन अब जब कातिल का सुराग मिला था तो इसके हाथ बंधे हुए थे। कितना बेबस था वो। और वानिया? इसने जोर से अपने बाल मुट्ठी में भींचे। दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि शिफान साहब, सैफ तुमसे शदीद नफरत करता है। उसे कहाँ गवारा होगा तुम्हारी जिंदगी में कोई। वो कभी भी तुम्हें खुश नहीं होने देगा। कभी भी नहीं। इसके मुताबिक शिफान ने इसकी मोहब्बत इससे छीनी थी और अब वो इंतकाम के तौर पर कभी इसकी जिंदगी में किसी को नहीं आने देगा। वो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हर शख्स को यूं ही अपने पांव के नीचे रोंद डालेगा, जिससे तुमसे प्यार होगा या जिसे तुम चाहोगे। माया की मौत के सदमे ने इससे ये क्या बेवकूफी करवाई थी। वो वानिया पर चीखा था और सैफ को पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच कुछ है। इसने इस मासूम लड़की की जिंदगी को कितने बड़े खतरे से दो चार कर दिया था। इसे अब सही मायनों में अंदाजा हुआ था कितना दुखी और बेबस था वो इस वक्त। इसका दिल तकलीफ और बेबसी के एहसास से फटा जा रहा था। घुटन का एहसास। यूं ही चहलकदमी करते हुए वो अपने घर से निकला और गायब दिमागी से ऐन सामने वाले घर के गेट के आगे कदम थम से गए। न जाने क्यों, लेकिन इसका दिल किया कि वो अंदर चला जाए। जितना वो बेचैन था, फिर इसने अपनी सोच को अमली जामा पहनाने में देर न लगाई और अंदर दाखिल हो गया। शाम का वक्त था। मौसम काफी सुहाना हुआ था। फरवरी की यख बस्ता और ठंडी मीठी शामें थीं। लाउंज में दाखिल हुआ। समीरा टीवी पर कोई टॉक शो देखने में मगन थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं पप्पू जान? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आओ, काफी दिन के बाद चक्कर लगाया मेरे बच्चे ने। शिफान धीमे से मुस्कुराया। वानिया और तानी किधर है? नजर नहीं आ रही। इसकी बेचैन निगाहें पता नहीं किसकी मुतलाशी थीं। बस क्या बताऊं बच्चे, नाक में दम कर दिया है दोनों ने। उधर मचा रखा है किचन में। शिफान खुलकर हंसा। क्यों, क्या हुआ पप्पू जान? आज नया खबर सवार है कुकिंग का। खुद ही जाकर देख लो। किचन में चाय बनाने को बोलना जरा वानिया को। वो उठा और किचन की तरफ चल दिया। दरवाजे पर जाकर जायजा लिया। तानी बड़े मजे से कुर्सी पर बैठी डाइनिंग टेबल पर कवर्निश बजा लाती बेसुरी आवाज में वानिया का सर खा रही थी और वो एप्रन बांधे सलीके से पकोड़े तल रही थी। दुपट्टा टेबल पर रखा हुआ था। हल्के फ्रोजी कलर की फ्रॉक और जीन्स की टाइट्स पहने सादा से हुलिये में भी धोधैया रंगत चमक रही थी। घने सियाह चमकदार बाल पोनी टेल की शक्ल में बल खाते कमर के नीचे तक झूल रहे थे। मसरूफ सा अंदाज था। इन दोनों ने अभी तक इसे नहीं देखा था।
वो दिलचस्पी से वानिया को देख रहा था। जाविया नजर आज अनोखा और अछूता ही था। ये लो मेरी पकोड़े जैसी बहन के लिए गर्मा गर्म पकोड़े। इसने दरवाजे की तरफ रुख किया तो सटपटा गई। तानी पकोड़े के खिताब पर तिल मिलाई। और वानी आप खुद चिमटी कहीं की। तानी की नजर शिफान पर पड़ी तो वो जरा तमीज के दायरे में आई। शिफान का तानी को इसे चिमटी कहना मजा दे गया। कह कहा लगाकर हंस पड़ा। न जाने कितने अरसे बाद खुलकर हंसा था। कुछ देर पहले की सारी अजियत देती कैफियत उड़न छू हो चुकी थी। ठहरो, तुम्हें तो मैं सिखाऊं बड़ी बहन से बात करने की तमीज। वानिया तानी की तरफ लपकी। मकसद दुपट्टा उठाने का था। तभी इसका तवाजन बिगड़ा था। इससे पहले कि वो फर्श पर सजदा रेज होती, दो मजबूत बाहों ने इसे नाजुक सी कमर से पकड़कर थाम लिया था। वानिया की तो सिटी गुम हो गई, क्योंकि इस लम्स में अजीब सी शिद्दत थी, जबकि वो बेहद गहरी और पुरतपिश नजरों से इसे देख रहा था। इसका नर्मो नाजुक और गुदाज वजूद शिफान के दिल में हशर बर्पा कर गया। एक क़यामत सी गुजरी थी इसके दिल और जज्बातों पर। वानिया का गुलाबी सा सुर्ख चेहरा हुआ था, जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। शायद इस लम्स की शिद्दत इसे अपनी रूह तक में समाती महसूस हुई थी। फौरन संभली थी कि तानी बोली, शुक्र है शिफान भाई आपने संभाल लिया, नहीं तो हड्डी वड्डी टूट जाती तो हारिस भाई का क्या बनता। अच्छा, वाकई शुक्र है मैंने संभाल लिया। शिफान ने संभाल पर जोर दिया। वानिया खुद को कंपोज करती फौरन अपना नजरअंदाजी का लिबादा ओढ़े। कोई काम था आपको? चाय पीने आया था। फुप्पो ने कहा कुछ और भी बन रहा है, सो देखने चला आया। आप बैठे भाई, वानी ने बहुत मजे के पकोड़े बनाए हैं। शिफान डाइनिंग टेबल पर ही विराजमान हो गया। समीरा भी वहीं चली आई। तानी ने जल्दी से चाय सर्व की। वो आमने सामने बैठे थे। वो मुसलसल इसे नजरों के हसार में लिए हुए था। इसकी नजरों की तपिश खुद पर बड़ी शिद्दत से महसूस करती वो बार बार पहलू बदल कर रह गई। शिफान का दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। शिफान घर आया तो बेहद पुरसुकून था, बेहद शांत, जैसे रूह तक में सरशारी उतर गई हो। साथ ही ऐसी खामोशी जैसे तूफान के आने से पहले का सुकून होता है। इसने अगले दिनों का लाया अमल अपने दिमाग में तरतीब दे लिया था। जब वो इस घर में गया था तो इसका जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। अब इसे जीने का असल मकसद मिल चुका था। इसने अपने लिए एक सीमत मुतय्यन कर ली थी, जिस पर चलकर इसने अपने जानी दुश्मन को शह मात देनी थी। इसने अपने दिल में सैफ को मुखातिब किया। सैफ यावर, जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। जिस तरह तुमने मेरे खानदान को रुलाया मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर करके तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। बहुत शातिर हो ना तुम। मैं तुम्हें ऐसा कांटों पे घसीटूंगा कि तिल मिला के तुम खुद को कोई गलती करने पर मजबूर हो जाओगे, और तब मैं गिरेबान से घसीटते हुए फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा तुम्हें। माया के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। और अब बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने वानिया पर नजर रख के। वो तुम्हें हराने के लिए मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरे ही खानदान की दूसरी लड़की पर तुमने नजर रखी। इस जुर्रत पर तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी सात पुश्तें पछताएंगी। तुमने इसे मेरी जिद और मेरा जुनून बना दिया है। वो अब सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। किसी ने इसी आंख उठाकर देखा भी तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। और तुम तो इसके साये को भी छू नहीं सकोगे। इसके दिलो दिमाग में इस वक्त जिद थी, जुनून था, और शायद पागलपन भी। लेकिन फिर भी इसकी रूह तक में सुकून फैल गया था। शिफान किचन में आया तो सारा डिनर की तैयारी कर रही थी। मामा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो, सुन रही हूँ। वो मामा, मैं चाहता हूँ कि फुप्पो और मीरा भाभी के घर वालों को डिनर पर बुला लूँ। मैं इस घुटन से निकलना चाहता हूँ। जरा घर पर गैदरिंग होगी तो दिल बहल जाएगा। इसने भरपूर एक्टिंग की। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया सोचा मेरे बेटे ने। सही, मीरब भी बहल जाएगी और इसके पेरेंट्स का भी ध्यान बढ़ जाएगा। ओके, आप फोन करके इनवाइट कर लें। कुछ घर की डिशेस हो जाएंगी और कुछ मैं बाहर से ले आता हूँ। सारा ने फोन करके यावर साहब को और समीरा को बुला लिया। मीरत बहुत खुश हुई थी, तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। शिफान भी बाजार से न जाने कौन कौन सी डिशेस ले आया। एक स्पेशल चीज लाना ना भूला जो कि प्लान में शामिल थी। यावर साहब की फैमिली पहुंच चुकी थी। वो ड्राइंग रूम में बैठे हल्की फुल्की सियासी हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे। सैफ भी दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाए मिसेज यावर के पहलू में बैठा था। वो सबसे बड़ी गर्मजोशी से मिला था। शिफान को फूफो के आने का इंतजार था और फिर समीरा फूफो भी आ गई, लेकिन सिर्फ तानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फूफो जान, कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। और वानिया कहाँ है? शिफान ने बड़ी बेचैनी से पूछा और वहाँ मौजूद एक शख्स ने पहलू बदला। बस बेटा, इन्हीं की वजह से लेट हुई हूँ। और अब वानिया बोली कि आप लोग जाएं, मुझे भूख नहीं। ये लड़की भी ना जरा ख्याल नहीं रखती अपना। कैसे भूख नहीं है? आप ठहरे, मैं लेकर आता हूँ इसको। वो बहुत लाड और फिक्रमंदी से बोला। चले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, तानी ने कहा। अरे नहीं, अभी तो तुम आई हो, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। वो निकला तो दो शोला बरसाती आंखों ने बाहर तक इसका ताकुब किया। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। फूफो के घर पहुंचा तो चौकीदार बाबा ने गेट खोल दिया। अंदर आया। लाउंज से टीवी चलने की आवाज आ रही थी।
वो अंदर दाखिल हुआ तो मबहूत सा सामने इस बड़ी पैकर को देखे गया, जो टीवी देखते देखते गालिबन नींद की वादी में खो गई थी। आंखें मूंदे सोफे पर बड़े रिलैक्स मूड में लेटी थी। काले लिबास में सफेद दो धैया वजूद दमक रहा था। नाजुक पांव टेबल पर रखे हुए रुई की गालों की मुशाबहत इख्तियार किए हुए थे। किताब सीने से लगाए, दोनों बाजू किताब पर लपेटे, वो जाने कौन सी दुनिया की सैर को निकली हुई थी। शिफान बेखुद सा होकर आगे बढ़ा। इसने वानिया के चेहरे के आगे चुटकी बजाई। ओ हेलो मैम, वानिया। वानिया हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने का मंजर इंतहाई गैर मुतवक्का था इसके लिए। वो जैसे इसके इतने करीब झुका हुआ था, इसे लगा कि ख्वाब है। इसने जोर से आंखें मिली। वानिया की इस अदा से शिफान निहाल हुआ और इसे अपने जज्बों पर बंद बांधना मुश्किल तरीन हो गया। इसीलिए उसको छू लेने के बहाने इसके नरम और गुदाज बाजू पे नरमी से चुटकी काटी। मैं ही हूँ मैडम, ख्वाब नहीं है कोई। इसकी इस जसारत पर वो भौंचकी रह गई। फौरन उठ खड़ी हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने बाजू से हिलाते हुए चिढ़कर खिफगी से कहा। लेने आया हूँ तुम्हें, शिफान ने लेने पर जोर दिया। इसके लहजे में कुछ था कि वानिया ने चौंक कर देखा। लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, वानिया जलते कुड़ते अपने दिल में हड़बड़ाई। इसने करारा सा जवाब दिया। नहीं आई तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। इसने दिलचस्पी से इसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखा। वानिया ने झटके से शोला बरसाती आंखों से शिफान को घूरा। मेरा मतलब है, मामा ने इतने प्यार से डिनर बनाया है और उन्होंने ही मुझे भेजा है। अब मामा का हुक्म तो टाल नहीं सकता ना। अगर ना आई तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। जब वो मुसलसल इसके सर पर ही सवार रहा तो नाचार उसे उठना पड़ा। जल्दी से हुलिया दुरुस्त किया और इसके साथ चल दी। वो फातिहाना सी मुस्कुराहट लिए इसकी तकलीद में आगे बढ़ा।